Hello everyone, welcome back to today's class. In the previous lecture, we were studying about the spherical mirrors, the concave mirror, the convex mirror. This we have already seen, and what are few terms which are related to the spherical mirrors. Okay, now in today's lecture, we are going to study about the image formation by spherical mirrors. How are images formed in case of spherical mirrors, in case of concave mirror or convex mirror. Okay. First of all, let us understand by an example. If you might have seen a concave mirror in laboratory or in if you have visited a circus, you might have seen a big concave mirror over there. Or if you are from Indore, then I'm going to give you a best example of concave mirror. If you have visited the Indore Zoo, there is a room which is dedicated to mirrors. Different types of mirrors are placed over there. Huge mirrors are placed. So in that there is a concave mirror, there is a convex mirror, all the different types of mirrors are placed over there. So if you have seen a concave mirror, so in case of a big concave mirror, if you place a concave mirror in front of you, okay, and if you go very near to the mirror, you can find that you will find a complete image of yourself. Then if you move a little back, then you will find that the image gets inverted. ठीक है, जो image है वो उल्टी हो जाती है. ठीक है, and अगर आप थोड़ा और हम पीछे जाएं, then we find that the image gets highly magnified. बहुत बड़ी हो जाती है और उल्टी हो जाती है. So the conclusion is कि whenever you change the position of the object in front of the concave mirror, in front of the spherical mirrors, the image position and the image size and the image type, okay, the nature of the image also gets changed. So how the image, what sort of image will be formed in front of a concave mirror or in front of convex mirror or spherical mirrors, we can say. So what sort of image, what type of image will be formed in front of the spherical mirror? It depends on the position of the object and on the where do we keep the object. Okay. So let us say this is a concave mirror. Okay, we know that this is the pole, this is an imaginary line known which is passing through the pole. This is known as the principal axis. This is the center of curvature and this is the focus. Okay, so if you keep the object beyond center of curvature, you get a different type of image. If you keep it between focus and center of curvature, you get a different type of image. If you keep it on focus, you get a different type of image. If you keep between pole and focus, you get different type of image. So depending on the position of the object, where you keep the object, you get different types of images formed. Okay. Now, before studying the image formation, we are going to study some basic rules for a point source object. Okay. Suppose this is an object. Okay. Sorry. Suppose this is an object. We are keeping this object in front of the mirror. Now what happens? We have already studied कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट लाइट में रखा होता है तो हमें विजिबल होता है, और अगर वो ऑब्जेक्ट डार्कनेस में रखा है, अंधेरे में, तो वो हमें विजिबल नहीं है. तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें विजिबल कैसे होता है? जब उसकी इमेज हमारे आईज में फॉर्म होती है, रेटिना पे फॉर्म होती है. तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज जब रेटिना पे फॉर्म होती है तो दैट ऑब्जेक्ट इज विजिबल टू अस. ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा है तो भी क्या होती है? उसकी इमेज फॉर्म होती है. तो ये इमेज फॉर्म होती कैसे है? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर बना है, मिलियंस ऑफ पॉइंट्स, और हर एक पॉइंट क्या कर रहा है? लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है. जब लाइट उसके ऊपर पड़ रही है, जब लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट है, तो हर एक पॉइंट क्या कर रहा है? उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है. तो देयर आर मिलियंस ऑफ पॉइंट सोर्सेस. ठीक है, बहुत सारे जो मिलियंस ऑफ पॉइंट्स हैं वो क्या है? दे आर सोर्सेस ऑफ लाइट. तो हर एक पॉइंट जिसके ऊपर लाइट गिर रही है, तो वो हर एक पॉइंट क्या कर रहा है? लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है. और जब ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है, ये जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करती है, तो उस इमेज जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म
हो जाती है मिरर के सामने. So when these millions of point sources, जो मिलियंस ऑफ पॉइंट सोर्सेज है, इनमें से जो लाइट आ रही है वो रेज जब आपस में इंटरसेक्ट होती है, कट करती है एक दूसरे को, तब उस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म हो जाती है. ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज इन द इमेज फॉर्मेशन. ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन में हम क्या कंसेप्ट यूज करेंगे कि जब रिफ्लेक्टेड रेज आपस में इंटरसेक्ट करेगी तो वहां पर क्या फॉर्म हो जाएगी, इमेज. ठीक है, अब अगर हम इतनी सारी ढेर सारी रिफ्लेक्टेड रेज और ढेर सारी इंसिडेंट रेज ले लेंगे तो इट विल बी अ ग्रेट कंफ्यूजन फॉर अस कि कौन सी रेज कैसे इंटरसेक्ट हो रही है. फॉर मेंटेनिंग द सिंप्लिसिटी हम क्या करेंगे, सिर्फ दो रेज लेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ टू रेज वी आर गोइंग टू मेक द रे डायग्राम्स, द इमेज. ओके, बिफोर मूविंग ऑन टू एन एक्सटेंडेड सोर्स, पहले हम एक पॉइंट सोर्स की बात करते हैं. ठीक है, एंड विद दैट पॉइंट सोर्स हम रे डायग्राम्स स्टडी करेंगे. We can say these are some rules for reflection through a spherical mirror. So ये rules है कि spherical mirror में reflection कैसे होगा. This is the concave mirror, this is the pole, focus, and this is the center of curvature. Now, if the incident ray is parallel to the principal axis. ठीक है, इंसिडेंट रे जो है वो कैसे इंसिडेंट रे, इट इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. सो उसकी रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी, द रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्टेड रे है इट विल पास थ्रू द फोकस. सो द रिफ्लेक्टेड रे passes through the focus. The reflected ray कैसे पास होगी, फ्रॉम द फोकस. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट रूल कि अगर इंसिडेंट रे इज सच दैट इट इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन द रिफ्लेक्टेड रे गोस थ्रू द passes through the focus. Okay, next the converse. Pole, the focus, the center of curvature. Now the converse. If the incident ray, if the incident ray is such that it passes through the focus, अगर incident ray focus से पास हो रही है, so the reflected ray, जो reflected ray रहेगी वो कैसे चली जाएगी, it will go parallel, वो parallel चली जाएगी. Okay, next the concave mirror, pole, focus, center of curvature. Okay, now the incident ray is such that it is incident from the center of curvature. ठीक है, इंसिडेंट रे ऐसे इंसिडेंट है फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है इंसिडेंट रे. सो द रिफ्लेक्टेड रे विल गो थ्रू द सेम पाथ. इंसिडेंट रे भी ऐसे ही आएगी और रिफ्लेक्टेड रे भी उसी पाथ से चली जाएगी. मतलब द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे both will go through the same path. तो इंसिडेंट रे भी यही और रिफ्लेक्टेड रे भी यही. ओके, नेक्स्ट if the incident ray is incident at pole पे इंसिडेंट है, then it will undergo normal reflection. The angle of incidence will be equal to angle of reflection as it takes place in the plane mirror. Okay, so it will undergo normal reflection. So these are the 4 rules which we will require
require to draw the ray diagrams to make for the image formation for concave mirror. So these are the 4 important rules. You may note them down. We will be studying about the image formations for the spherical mirrors. So let's make a table. Here we will be writing the object distance, where the object is placed. Here we will be writing the image distance, and here we will be writing the nature of the image formed. Nature, size and nature of the image formed. Okay. Now first, if the object is placed at infinity, okay, some object distance, say position of object, and say position of image. Okay. So first, in case of a concave mirror, if the object, this is the object, if the object is placed at infinity, infinity means प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर प्लेस किया है इंफिनिटी पे, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, बहुत दूर, वी नो कि इंफिनिटी से जो रेज आती है दे आर पैरेलल रेज आती है. हमने सन वाले एग्जांपल में देखा था कि जो सन से रेज आ रही थी दे वर पैरेलल. तो इंसिडेंट रे कैसे आएगी इंफिनिटी से? पैरेलल. वी विल बी कंसीडरिंग 2 रेज, ठीक है, तो एक पैरेलल रे आई इंसिडेंट, वो कहां से चली जाएगी? It will pass through focus. The reflected ray will pass through focus. Okay. Now see the other incident ray, यहां से आ रही है, ठीक है, तो वो भी कहां से चली जाएगी? फोकस. तो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, जो दोनों रेड रेज है, वो कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? They are intersecting at the focus. So the image will be formed at focus. ठीक है, कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? फोकस पे. तो इमेज कहां फॉर्म होगी? एट फोकस. अब देखो, इतने बड़े ऑब्जेक्ट के लिए एक पॉइंट साइज इमेज फॉर्म हो रही है, पॉइंट जितनी. सो द साइज ऑफ द इमेज इज पॉइंट साइज्ड एंड नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड. ओके, रियल इमेज कैसे पता चला? क्योंकि इमेज मिरर के सामने बन रही है, मिरर के आगे. सो द इमेज इज रियल. हमने प्लेन मिरर में पढ़ा था कि प्लेन मिरर के केस में इमेज जो है वो मिरर के पीछे बन रही थी, सो इट वाज वर्चुअल. मिरर के सामने बन रही है तो इट इज रियल, एंड रियल इमेज इज इन्वर्टेड. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट वन. Now the second one, if the object is kept beyond center of curvature on the principal axis, principal axis के ऊपर but center of curvature के बाहर, beyond center of curvature. This is the pole, this is the focus, this is the center of curvature. Say the object is kept here beyond center of curvature. Okay, we are going to take 2 rays. One ray is incident, parallel rays. The reflected ray will pass through the focus. Okay, and the other ray, say we take the incident ray from center of curvature. So the other incident ray, we take incident from center of curvature. So the other incident ray is incident from center of curvature.
So the reflected ray will also pass through the center of curvature only. हमने रूल पढ़ा है कि अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेम पाथ से जाती है, तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो भी सेम पाथ से जाएगी यहीं से। सो दोनों रेड रेज जो है, दो रिफ्लेक्टेड रेज कहां इंटरसेक्ट कर रही है? यहां पर, ठीक है। जहां पर रेज इंटरसेक्ट करती है, ये रेज जो है वो कहां से आई है? ये टिप से आई है, एरो से आई है, तो जहां इंटरसेक्ट करेगी वहां पर भी ये एरो का हेड बनेगा। सो यहां पर बनेगा एरो का हेड, ठीक है, ये रहेगा एरो का हेड, हेड फॉर द एरो, और ये एरो की लाइन। सो दिस विल बी द इमेज। तो इमेज देखो, ऑब्जेक्ट सीधा रखा था, इमेज कैसी हो गई? उल्टी, इन्वर्टेड, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सी, इमेज कहां बन रही है? बिटवीन F and C. The object, the image will be formed between F and C. ठीक है। ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, ठीक है, तो इमेज कैसी रहेगी? डिमिनिश्ड। और नेचर ऑफ इमेज कैसा रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि मिरर के आगे बन रही है इसलिए रियल और उल्टे तो दिख ही रही है, तो इट इज इन्वर्टेड, ठीक है। थर्ड, इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट रखा है एट सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा है एट सी, this is the focus, so this is the center of curvature, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखा है यहां एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो रेज से रे डायग्राम बनाएंगे। फर्स्ट रे से पैरेलल जा रही है, इज इंसिडेंट, पैरेलल, पैरेलल इंसिडेंट है तो कहां से पास जाएगी? इट विल पास थ्रू फोकस, कहां से जाएगी? से फोकस, ठीक है, फोकस से जाएगी। द सेकेंड रे, जो दूसरी रे है, ठीक है, वो इंसिडेंट है से एट पोल या से एट फोकस। दूसरी रे, द सेकेंड रे इज इंसिडेंट एट फोकस, फोकस पे इंसिडेंट है, ठीक है, इंसिडेंट एट फोकस, या पोल भी ले सकते हैं, पोल ले लो, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि ये फोकस पे इंटरसेक्ट करेगी तो कंफ्यूजन होगा, पोल ले लो। द सेकेंड रे इज इंसिडेंट से एट पोल, तो सेकेंड रे जो है वो इंसिडेंट है एट पोल, पोल पे इंसिडेंट है, ठीक है, पोल पे इंसिडेंट है। So the reflected ray ये इसकी will undergo normal reflection, जो नॉर्मल रिफ्लेक्शन होता है वो हो जाएगा। पोल पे इंसिडेंट है तो नॉर्मल रिफ्लेक्शन। जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रेज मिली, दो रेड रेज जहां पर मीट करेगी वहां क्या बनेगी? इमेज, तो यहां पर हेड बनेगा, ठीक है, और यहां पर इसकी लाइन, सो दिस इज द हेड एंड दिस इज द लाइन, तो ये बन गई इमेज। तो इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सी, द इमेज विल बी फॉर्म एट सी, इमेज भी कहां बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है।
ओके, तो एक रे पैरेलल ली हमने इंसिडेंट तो फोकस से चली गई, दूसरी रे हमने पोल पे इंसिडेंट ली तो उसमें नॉर्मल रिफ्लेक्शन हो गया। दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इस पॉइंट पे मिली, इस पॉइंट पे हमने बनाया एरो का हेड और वहां से प्रिंसिपल एक्सिस तक एक लाइन ड्रॉ की। ओके, इमेज जो है दैट इज ऑफ सेम साइज, इमेज सेम साइज की है, मिरर के सामने बन रही है इसलिए रियल, एंड उल्टी है इसलिए इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट इज नाउ केप्ट बिटवीन एफ एंड सी। अब ऑब्जेक्ट कहां रखा है? एफ और सी के बीच में। This is the concave mirror. The principal axis, focus, center of curvature. Okay. Object is kept between F and C. ठीक है, एक रे पैरेलल ले लेंगे, इंसिडेंट पैरेलल, तो वो कैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी? It will be reflected from focus, ठीक है, फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दूसरी रे ले लेते हैं पोल से, इंसिडेंट एट पोल, पोल पे इंसिडेंट, तो वो रे जो है वो कैसे जाएगी? इट विल अंडरगो नॉर्मल रिफ्लेक्शन, तो पोल से जो रे जाएगी उसका हो जाएगा नॉर्मल रिफ्लेक्शन। सो दिस रे विल अंडरगो नॉर्मल रिफ्लेक्शन। ठीक है, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज यहां पे मीट हो गई, दोनों रेड रेज यहां इंटरसेक्ट कर रही है, यहां और कहीं पे नहीं कर रही, दोनों रेड रेज यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पर बन जाएगा एरो का हेड एंड लाइन। तो ऑब्जेक्ट देखो इतना बड़ा है, इमेज इतनी बड़ी बन रही है, ऑब्जेक्ट इज ऑफ दिस साइज एंड इमेज इज ऑफ दिस साइज, तो इमेज क्या हो गई? एनलार्ज्ड। और कहां बनी इमेज? बियॉन्ड सी। सो द इमेज इज बियॉन्ड सी एंड द इमेज इज एनलार्ज्ड, एंड नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ वी प्लेस द ऑब्जेक्ट एट फोकस। This is the focus, center of curvature. The image is placed at focus. ठीक है, आप पैरेलल रे नहीं ले सकते क्योंकि इमेज फोकस पे प्लेस की है। The first ray which we take is say from C, incident from center of curvature, center of curvature से इंसिडेंट है। सो द रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगी वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। ठीक है, द सेकेंड रे विच वी टेक इज इंसिडेंट एट पोल, पोल पे इंसिडेंट है। सो द रिफ्लेक्टेड रे विल अंडरगो नॉर्मल रिफ्लेक्शन, we undergo normal reflection. As you can see कि ये वाली reflected ray, this reflected ray, ये वाली red ray and this red ray, these both rays are parallel to each other. ठीक है, दोनों rays जो
दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ये मीट नहीं करेगी, दे विल नॉट मीट. एंड वी नो दैट पैरेलल रेज मीट एट इंफिनिटी. पैरेलल रेज कहां मीट करती है? एट इंफिनिटी. सो इमेज कहां फॉर्म होगी? इंफिनिटी, एट इंफिनिटी. ठीक है. इमेज जो है दैट विल बी हाईली एनलार्ज्ड, बहुत ज्यादा बड़ी रहेगी, एंड रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है. द लास्ट वन, द लास्ट रे डायग्राम इज when we place the object between pole and focus. अगर हम ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बीच में प्लेस करें, ठीक है, when we place the object between pole and focus. So this is the focus, this is the center of curvature. इससे प्रिंसिपल एक्सिस को हम थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं पीछे. This is the pole. ऑब्जेक्ट हमने कहां प्लेस किया है? बिटवीन पोल एंड फोकस. ठीक है. द फर्स्ट रे, अगर हम ले इंसिडेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट है. सो द रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे जो रहेगी वो भी कैसे जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से. ठीक है. द सेकेंड रे वी टेक फ्रॉम पोल, इंसिडेंट एट पोल, पोल पे इंसिडेंट. तो जो रिफ्लेक्टेड रे है, द रिफ्लेक्टेड रे दैट विल अंडरगो नॉर्मल रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल रिफ्लेक्शन होगा और वो कुछ ऐसी जाएगी. ठीक है. अब यू कैन सी कि जो दोनों रेज है दे आर डाइवर्जिंग. मतलब अगर हम इन दोनों रेज को आगे बढ़ाएं तो ये दोनों रेज जो है दे आर डाइवर्जिंग. डाइवर्जिंग मतलब दूर जाएंगे. देखो ये रेज दूर होती जा रही है, ये कभी भी मीट नहीं करेगी. तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम क्या करेंगे? इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे. ठीक है. तो जब हम इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, व्हेन वी एक्सटेंड देम, तो ये दोनों रेज मिरर के पीछे यहां पर मीट कर जाती है. ठीक है. तो जो इमेज है वो इस केस में कहां बनेगी? मिरर के पीछे. ओके. सो द इमेज विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर. तो इमेज कहां बनेगी? बिहाइंड द मिरर. ठीक है. अब बिहाइंड द मिरर इमेज कैसी रहेगी? वर्चुअल, रियल नहीं रहेगी. और इस केस में ये ऑब्जेक्ट है, इमेज कैसी है? सीधी, इरेक्ट. सो द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. द इमेज इज एनलार्ज्ड, बड़ी है ऑब्जेक्ट से. और इमेज का नेचर कैसा है? इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. वर्चुअल एंड इरेक्ट. ओके. सो दिस इज ऑल विद द रे डायग्राम्स फॉर कॉन्केव मिरर. Now moving on to some uses of concave mirrors. We know that concave mirror जो है, ठीक है, उसमें से एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है. We have seen कि इंफिनिटी में जब इमेज बनती है तो एक पैरेलल स्ट्रॉन्ग पावरफुल बीम ऑफ लाइट आती है. So because उसमें से पैरेलल स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट आती है, it is used as searchlights in case of torches and everything. So it is used in searchlights. Second, the image formed by plane mirror is by concave mirror, is enlarged. बड़ी images form होती है. So they are used as shaving mirrors. Shaving mirrors के form में भी use होते हैं. And they are used by dentists. Dentists भी इन्हें use करते हैं, ठीक है, ताकि images जो है वो कैसे दिखे? बड़ी दिखे. So these are some uses of
mirror. So this is all with the image formation and uses of concave mirror. In the next lecture, we are going to study about convex mirrors.